बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से ईद का दिन और बहुत खुशी का दिन है। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। एक मिनट में जूते निकाल लूँ। ये तो अभी टाइम पता क्या हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। 5:42 हुए हैं और हाँ आज जल्दी आ रही है। 6:20 पर अजान हो जानी है। एक मिनट उन्होंने कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरा फेस ही नज़र आ रहा है तो ना आ रही कल 6। हाँ अब मेरा शक्ल आई नज़र। मैंने टाइट करके स्कार्फ बांधा, पता क्या स्कूटी पे जा रहे थे वो फिर हिलता है ना, उतर जाता था। बिल्कुल टाइट बांध लिया मैंने। और आइए जल्दी आ जा, टाइम नहीं है, 15 मिनट का तो रास्ता है। तो ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर जा रहे हैं हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने। आई भी आ लिया तो आ रही है। पता नहीं तो मैं स्कूटी कटा बाहर। अच्छा ग्लव्स नहीं पाए खैर की हो गया मनो, तू तंग ना कर, परेशान ना कर। पहुंच गए हम लोग। लेडीज का अलग इंतजाम किया होता है इन्होंने। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من
صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة آج مسلمانوں کی یہ سال کے اندر آنے والی ہماری اس طرح میں جسے میٹھی عید کی عید ہے، سیویوں والی عید ہے، اور شرعی اس طرح میں جسے عید الفطر بھی کرتے ہیں۔ نہیں سمجھا رہا عید کے میدان میں جمع ہونے کا ایک خاص مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نماز پڑھنے کو عید سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے صرف نماز پڑھی ہے انہوں نے ابھی عید سے کچھ نہیں پڑھا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ دوسری جگہوں سے دوسری جماعتوں سے آتے ہیں، وہ اس مسئلے اور اس محفل کو مجلس کے مقصد کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے یہاں تقریر پہلے ہو جاتی ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، اور نماز کے بعد دعا کرا کے فارغ ہوتی ہے۔ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ سنت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی میدان میں تشریف لے آتے عید کے لیے نہ اذان ہوتی، نہ تکبیر ہوتی، نہ کوئی نعت ہوتی، نہ کوئی نظم ہوتی، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو باری باری بدل بدل کے۔ آج تو خیر یہاں لوگ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ بھی کہتے ہیں پڑھو پڑھو ذرا اونچی پڑھو میرے ساتھ پڑھو۔ یہ اجتماعی ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول تشریف لاتے سب سے پہلے عید کی دو رکعتیں پڑھتے، اور اس کے بعد عید سے فارغ ہو کر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، خطبے کے بعد دعا فرماتے۔ یہ جو لوگوں کا یہ جو آپ عید کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، خطبے کے بعد جو دعا فرماتے ہیں، یہ دعا ہی اصل آج کا مقصود ہے۔ آج کا جو مقصود ہے وہ اصل دعا ہے کہ آپ ایک مہینہ پوری اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو آپ نے روزہ رکھ کر مزدوری کی ہے، اللہ تعالیٰ آج آپ کو اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ عید الفطر کا اور کوئی مقصد نہیں، آپ کو اس مزدوری کا صلہ ملے۔ اگر مزدور سارا دن محنت کرے یا سارا مہینہ محنت کرے، اور جس دن اس کا سیٹ بولے کہ کل تنخواہ ملے گی 8 بجے، کل تنخواہ ملے گی 7 بجے 6 بجے، اور وہ بولے میں تو نہیں آ سکتا، میں تو آؤں گا پرسوں، وہ تو تنخواہ تو نہیں ملی نا۔ جو اس نے ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ آئیں، اپنی مزدوری وصول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیوں جمع ہیں، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ اور پوچھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک وقت کا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں ایک مخلوق انسان کی شکل میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کی موجودگی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اے فرشتوں، جو بات میں جانتا ہوں
दिखाना चाहता है। मैं क्या जानता था जो तुम्हें मैंने कहा था कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, ऐ फरिश्तों मेरे ये बंदे मैदान में क्यों जमा हैं? फरिश्ते कहते हैं, रब्बुल आलमीन, इन्होंने जो पूरा महीना सारा दिन तुझे खुश करने के लिए, तेरी रज़ा के लिए सुबह से लेकर शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, बहुत सारी हलाल चीजों से बचे रहे, हलाल चीजों से दूर रहे। आज ये उस पाबंदी की तुमसे मजदूरी चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सबको माफ फरमा दिया। आपके मैदान ईद में जमा होने से रब्बुल आलमीन आपके लिए माफी का ऐलान कर देता है। मुझे बतलाइए आपको और क्या चाहिए? अगर रब्बुल आलमीन दुनिया में हम सबको माफ कर देता है तो फिर याद रखिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रोज़ आखिरत आपका हिसाब भी नहीं लेगा, क्योंकि वो माफ कर चुका है। जब रब्बुल आलमीन माफ कर देता है फिर बंदे से ये भी नहीं पूछता कि ऐ मेरे बंदे बता तूने ये काम क्यों किया था। अल्लाह के हबीब इसीलिए अक्सर दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, आपने अक्सर नमाजों में भी, नमाजों से हटकर भी अल्लाह से ये दुआएं करते हैं, अल्लाह मेरे हिसाब को आसान फरमा। ये आसान हिसाब क्या होता है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, आयशा तू भी कमाल करती है, ये आसान हिसाब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से पूछे ही ना, ऐ मेरे बंदे बता तूने ये काम क्यों किया? ऐसा भला मुझे बतला। अगर अल्लाह किसी से क्यों करके ये पूछ ले, फिर किस में दम है जो अल्लाह की क्यों का जवाब दे सके? इसलिए इस मैदान में बैठना अल्लाह रब्बुल आलमीन की माफी का सर्टिफिकेट लेने के मुतरादिफ है। आप दुआ मांगे बगैर मत जाया कीजिए, दुआएं मांगा कीजिए। अहले हदीसों वैसे तो आपको दुआओं की आदत नहीं, लेकिन आज के दिन तो मांग डाला कीजिए, साल में एक मरतबा तो मांग लिया कीजिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में रोजाना 70 से भी ज्यादा मरतबा इस्तगफार करता हूँ। हालांकि आपके दामन में कोई दाग नहीं था, आपकी झोली में कोई गुनाह नहीं था, आपकी दामन बिल्कुल पाक साफ और बेदाग था, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दिन में 70 से भी ज्यादा मरतबा इस्तगफार करते हैं। हमारे दामन तो गुनाहों से दागदार हैं, हमारे दामन तो गुनाहों से छलनी है, फिर भी हम निडर हैं, फिर भी हम बेखौफ हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगते। अल्लाह का रसूल कहता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मल्ला यसअलिल्लाह यक्सब अलैह, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता रब्बुल आलमीन उससे नाराज होता है। ये भी नाराजगी है कि मेरा बंदा इतना मगरूर है, मेरे आगे हाथ उठाने से भी शर्माता है, मेरे आगे गिड़गिड़ाने से भी शर्माता है, शर्म महसूस करता है, सबके सामने रोने से भी शर्माता है। अल्लाह के हुजूर रोया कीजिए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाया कीजिए, अल्लाह के हुजूर दस्ते सवाल उठाया कीजिए, तलब का दामन भी फैलाया कीजिए, अपनी जमीन नियाज को उसी के आगे झुकाया कीजिए, अल्लाह के लुत्फ़ो करम को भी आजमाया कीजिए। उसकी जो रहमत कहती है, मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, तेरे मांगने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज़ देर न होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम,
तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगते तो देखो, क्यों मायूसी की बातें करते हो, क्यों कुफ्र की बातें करते हो। इसलिए कि मेरी रहमत से मायूस होना कुफ्र है, मेरी रहमत की उम्मीद रखो। अल्लाह के हबीब से कहा गया नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदे आपसे जब मेरे बारे में पूछे मैं इनके करीब हूँ या इनसे दूर हूँ, इन्हें बता दीजिएगा कि मैं इनके करीब हूँ। ऐ इलाहुल आलमीन, कितना करीब है तू, अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू हमारे कितना करीब है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 6 मंजिल, 14 मंजिल, 10-20 मंजिल, कितना तू हमारे करीब है। अगर इतना दूर है तो हम स्पीकरों पे तुम्हें पुकारा करें, हक हू के नारे लगाया करें, और अगर तू हमारे करीब है तो हम दिल में भी घर बैठे पुकार लिया करें। अल्लाह कहता है मेरे बंदे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तेरी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूँ, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूँ। आज दुनिया मुझे पुकारने के लिए वास्ते और वसीले तलाश करती है, ऐ मेरे बंदे उसे सीढ़ियां करार देती है। मैंने अपने और तेरे दरमियान सीढ़ी लगाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी तुम्हारे ज्यादा करीब हूँ। लगा सीढ़ियां कहाँ लगाएगा, दुनिया की सारी सरकारें तुमसे दूर है, बगदाद वाला तुमसे दूर, अजमेर वाला तुमसे दूर, लाड़काना वाला तुमसे दूर, पाक पटन वाला भी तुमसे दूर। नहनु अक़रबु, सिर्फ हम ही तुम्हारे करीब हैं। अल्लाह को पुकारा करो, अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल अगर आप कहो तो मैं उहुद पहाड़ आपके लिए सोना बना दूं, आपने मगर हम बोले तो हम क्या करें। सबको मालूम है हमारा जवाब क्या है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह मुझे सुबह खिला, शाम को फिर मुझसे मांगना, शाम को खिला तो सुबह फिर तुझसे मांगना पड़ेगा। ताकि तुझसे जो मांगने की लज्जत और आदत है ये कभी खत्म नहीं होगी। ये अल्लाह से मांगने की लज्जत ही कुछ है, अल्लाह से मांगने का सवाब ही कुछ हो। आप अल्लाह से मांग के तो देखिए। हम हमेशा मायूस रहते हैं, आज घर में बच्चे हैं, बच्चों की शादियां नहीं होती, बच्चियों की शादियां नहीं होती, बच्चों के नसीब अच्छे नहीं है। अरे कौन कहता है आपके बच्चों के नसीब अच्छे नहीं? आपने अल्लाह से मांगा ही कभी? कभी आधी रात को मुसल्ला बिछा के 2 रकअत पढ़कर सजदा रेज़ होकर नदामत के 2 अश्क बहाकर अल्लाह से सवाल करके तो देखो। यकीन मानिए सुबह होने से पहले आपके दरवाजे पर इस वक्त खुद दस्तक दे। सिर्फ हमने मांगना छोड़ दिया, उसने देना छोड़, हमने रोना छोड़ दिया, उसने देना छोड़। बचपन में भी तो हमारी जरूरतें पूरी होती थी ना। दुनिया का कोई बच्चा जब पैदा होता है बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी हर जरूरत अल्लाह उसके रोने से पूरी करता है। पठान हो, बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू वाला हो, अंग्रेज हो, मुसलमान हो, बच्चे को प्यास लगेगी रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, कपड़े गीले हो गए रोएगा, कान में दर्द है रोएगा। माँ बाप खुद फैसला करेंगे इस वक्त ये क्यों रोगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे जब भी तेरी जरूरतें मैं तेरे रोने से पूरी करता हूं, जब तो तू बोल नहीं सकता अब तो तुझे बोलना आ गया और बड़ा फसीह हो लिसान हो गया, बड़ी खूबसूरती और सफाई से बोलता। अब जब मुझसे जुबान से मांगने का वक्त आया तूने रोना ही छोड़ दिया, तूने रोना ही छोड़ दिया।
औलाद पर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। या कादिल हाजात इक़्ज़ी हाजातिना या कादिल हाजात इक़्ज़ी हाजातिना। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ इलाहुल आलमीन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। अल्लाह अपने औलादों को औलाद की नेमत से नवाज। अल्लाह जिनको तूने औलादें दी हैं उनकी औलादों को नेक और साले बना। अल्लाह तमाम मुसलमान माँ बाप को उनके बच्चों और बच्चियों की खुशियाँ देखने नसीब फरमा। तमाम मुसलमान वालिदैन को उनके बच्चों पोतों नवासों की खुशियाँ देखने नसीब फरमा। अल्लाह तमाम मुसलमान बच्चों को उनके माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, उनके बुढ़ापे का सहारा बना, आखिरत का ज़ख़ीरा बना, उनके लिए सदका जारिया बना। अल्लाह हमारे बड़े बुजुर्ग तो ईद पे फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह उन्हें अज़ाब क़ब्र और अज़ाब जहन्नम से बचा। अल्लाह उनकी बशरी तकाज़े से होने वाली तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें भी जब तक दुनिया में रखे इस्लाम और ईमान पे कायम रखे। अल्लाह मरते वक्त करना नसीब फरमा। अपने नबी की शफाअत नसीब फरमा। अपने नबी के दस्त मुबारक से आब कौसर नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन मरते वक्त करना नसीब फरमा। अल्लाह हम सब के मुकद्दर में तूने जितनी भलाइयाँ लिख रखी हैं सब हमें नसीब फरमा। हमारे मुकद्दर में तूने जितना शर लिख रखा है उससे हमें महफूज फरमा। अल्लाह आज मैदान में मर्द औरत बूढ़ा जवान बच्चा सब ने तेरे सामने झोलियाँ फैला रखी हैं। अल्लाह इनकी झोलियाँ भर दे। अल्लाह इनकी मुरादें पूरी फरमा। अल्लाह नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन अपने दर के सिवा कभी किसी का मोहताज न बना। अल्लाह हमेशा अपने दर से मांगने वाला बना। गैरों से बेनियाज फरमा। मकरूजों के कर्जे अपने फजल से दूर फरमा। आमीन इला नफ़े आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को ईद मुबारक। खत्म हो गई की नमाज। मेरा पर्स ही दे। हाँ ठीक है वो भी आसान। इतनी दूर खड़ी करती सी। बहुत छोटी लग रही है, बहुत छोटी लग रही है। अब कहाँ जा रहे?
दोबारा कभी फिर कहेंगे हम। ओए, सूरज रोड निकल देखिए, देखिए रोड, और बिस्मिल्लाह यहाँ से, अल्लाह अकबर, कितना रोड आ, ये खाली है वाला है ना। हाँ